Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road, Karachi. Today my topic is from first year Biology, Section 4, Functional Biology. Topic is from Functional Biology. Chapter 13, Gaseous Exchange, page 328 to 322. Gaseous exchange in animals. Respiratory organs of terrestrial and aquatic animals. Respiratory organs of hydra, earthworm, cockroach. Today we are going to discuss respiratory system of fish. Respiratory organs of fish. Respiratory system of fish. Chapter 13, Gaseous Exchange. Gaseous exchange in animal, respiratory system of fish. Page 314 to 315. Respiratory organs of fish are called gills. क्या कहलाते हैं? Gills कहलाते हैं. Gills. They are formed as the outgrowth of the pharynx and internally within the body. Body के अंदर होते हैं. So they are protected from mechanical injury. प्रोटेक्टेड होते हैं. सेक्शन 4, फंक्शनल बायोलॉजी. स्ट्रक्चर ऑफ अ गिल ऑफ फिश. Each gill is highly vascularized structure. It is composed of 2 rows of hundreds of gill filaments. क्या कहलाते हैं? Gill filaments. Each gill composed of 2 rows of hundreds of gill filaments arranged in V shape. अभी आप डायग्राम में देखिएगा. Supported by cartilage or a long curved bone, the gill bar. Supported by gill bar और gill arch को कहते हैं. अभी डायग्राम में देखिएगा. Structure of a gill of fish. Section 4, functional biology. Respiratory system of fish. Structure of a gill. Structure of a gill of fish. Gill filament. Each gill filament is folded to form numerous plate-like lamellae. Gill lamellae. Each gill filament. Gill lamellae increase the surface area of the gill. Each lamellae is provided by the dense network of blood capillaries. गिल से गिल लेमिली और गिल लेमिली के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. इन द बोनी फिशेस द वेंटिलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ माउथ एंड द अपरकुलम. मुंह से पानी आता है और अपरकुलम से बाहर निकल जाता है. मुंह से पानी आता है. वाटर इज ड्रॉन इनटू द माउथ. माउथ में आया, इट पासेस ओवर द गिल्स. माउथ में आके वहां के गिल्स के ऊपर से गुजरेगा. गिल्स के ऊपर से गुजरेगा through the pharynx से होता हुआ and ultimately exit at the back of the upper column. जो upper column होता है फिश का, उससे बाहर निकल जाएगा. गिल से पानी गुजरेगा और upper column से बाहर निकल जाएगा. मुंह में आएगा pharynx और through गिल्स और upper column जो उनका आउटर upper portion है तो खुलता है और वहां से पानी बाहर निकल जाएगा. गिल फिलामेंट. This is the structure of गिल फिलामेंट्स एंड गिल लेमिली. यहां देखिए गिल रैकर्स, गिल फिलामेंट्स. दीज आर गिल फिलामेंट्स. ये अपर कुलम होती है. अपर कुलम हट गया है, अपर कुलम हटा है, माउथ है. माउथ के बाद फैरिंक्स आएगा और ये अपर कुलम अंदर देखें गिल फिलामेंट्स है. गिल फिलामेंट्स, ये रोज ऑफ गिल फिलामेंट्स. गिल रैकर्स, गिल आर्च. दिस गिल आर्च वो अभी ऊपर अब जिक्र किया था इसके स्ट्रक्चर का. दीज आर गिल फिलामेंट्स. गिल फिलामेंट्स विद लेमिली. They are provided with hundreds of lamellae. Gill filaments, each filaments are provided by. These are the gill filaments. These are filament with lamellae. देखिए एक गिल फिलामेंट है और यहाँ देखिए ये these are lamellae. 1 2 3 4 बहुत सारे हैं. देखिए 1 2 3 4 5 hundreds of gill lamellae. अब gill lamellae, these gill lamellae are richly supplied by the blood capillaries. Blood flow
बाहर आया, बाहर निकलने वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेट, नीली वाली क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और फ्लो ऑफ द वाटर इज against the direction of the blood flow, against the direction. This is known as the counter current flow. This is known as the counter current flow. In the capillaries of each lamella, the blood flows in the direction opposite to the movement of water across the gill. Opposite to the movement of water across the gill. This is very important. यानी पानी की अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो, ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पानी उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में. Thus, the most highly oxygenated blood is brought close to the water that is just entering. यानी कि ऑक्सीजन, ये पानी आ रहा है तो this पानी encounters with the highly oxygenated blood entering the gills and that even higher oxygen content than the blood. लेकिन पानी में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है ब्लड के मुकाबले में, तो पानी उसके अंदर इवन यहां पर भी डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है जब तक के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूरी नहीं हो जाती. स्ट्रक्चर ऑफ अ गिल फिलामेंट एंड द गिल लैमेली, ये स्ट्रक्चर, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज लो एंड ऑल्सो द वाटर इज डेंसर देन एयर, the fish must use considerable energy to ventilate its gills. Gas exchange in the gills is also facilitated in the gills by the counter current flow of the water and the blood. Counter current flow is very important. This counter current flow of flow of water and the blood. In the capillaries of each lamella, the blood flows in the direction opposite to the movement of water across the gill. This is very important. The blood flows in the direction opposite to the movement of water across the gill. इन्हें पानी आ रहा है, ब्लड पानी की डायरेक्शन और ब्लड की फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है. इसकी वजह से ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है उसको जब्स होने में मदद मिलती है, तेजी से हो जाती है. अभी आगे आप देखिएगा. 10 The most highly oxygenated blood is brought close to the water that is just entering the gills and that has even higher oxygen content than the blood. Higher content, अभी आपने पीछे डायग्राम में देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह पानी जो आ रहा है वो सबसे पहले उससे टकराता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन जो आगे बढ़ता है गिल लैमेली में तो पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती रहती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती रहती है. इस काउंटर करंट फ्लो की वजह से, काउंटर करंट फ्लो की वजह से डिफ्यूज होती रहती है. एज द वाटर फ्लोज ओवर द लैमेली, जैसे पानी ऊपर जाता रहता है, लैमेली में आगे जाता है, ग्रेजुअली लूजिंग इट्स ऑक्सीजन टू द ब्लड. जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती रहती है. एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज द वाटर फ्लोज ओवर द लैमेली, यानी पूरी लैमेली से गुजरेगा ना, ग्रेजुअली लूजिंग इट्स ऑक्सीजन टू द ब्लड, इन्हें ब्लड उसके अंदर से, पानी के अंदर से ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जब्स करता रहेगा इस काउंटर करंट फ्लो की वजह से. इट इनकाउंटर्स ब्लड डेट इट्स आल्सो इंक्रीजिंग लो इन ऑक्सीजन, यानी कि पानी आगे की तरफ जो बढ़ता जाएगा वो जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड उससे इंकाउंटर करेगा, कम ऑक्सीजन वाले ब्लड से इंकाउंटर करेगा और वहां पर भी ऑक्सीजन वहां पर भी डिफ्यूज होती चली जाएगी. काउंटर करंट इफेक्ट की वजह से. काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड, काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड, काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड, काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड. इन दिस वे द ग्रेडियंट्स encouraging oxygen to move more water into the blood is maintained across all lamella. ये पानी जूं लैमेली में आगे बढ़ता जाएगा और वो ऑक्सीजन पानी से एब्जॉर्ब होती चलाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी. द काउंटर करंट फ्लो इज वेरी इफेक्टिव एज इट एनेबल्स द फिश टू एक्सट्रैक्ट अप टू 80 to 90% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर. 80 से 90% जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. डेट फ्लोज ओवर द गिल्स, ऑक्सीजन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेती. पानी के अंदर 80 to 90% जितनी भी ऑक्सीजन है, गिल लैमेली में जैसे पानी जा रहा है तो 80 to 90% ऑक्सीजन जितने पानी के अंदर उसके अंदर डिसॉल्व है वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन 80 to 90% ले लेती है, पानी से ले लेती है ब्लड.
ले लेता है वाटर. This is very important. Counter current flow. This is the importance of counter current flow. Water in through the mouth over the gill filament. Gill filament से ऊपर गुजर रहा है. Gill arch दिखाई, gill filament, lamella, gill arch, gill filament. This is how water goes. ये किस तरह से पानी आ रहा है, किस तरह से पानी आ रहा है. गिल फिलामेंट के ऊपर से गुजर रहा है और गिल लैमेली के ऊपर से गुजर रहा है. गिल फिलामेंट कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गिल लैमेली. गिल लैमेली से कैसे ऊपर से गुजरता जा रहा है. काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिश स्कापरकुलम पानी अंदर आया. गिल आर्च, ये देखिए गिल्स, ये दीज आर गिल फिलामेंट्स. ठीक है, गिल आर्च, गिल फिलामेंट, ब्लड वेसल्स, ये दीज आर गिल फिलामेंट्स. यहां पर देख वाटर फ्लो ओवर लैमेली शोइंग परसेंट ऑक्सीजन. यानी कि ऑक्सीजन जब पानी आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. और ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो अभी ऊपर जुमला लिखा हुआ ऑक्सीजन रिच, पानी जो सबसे पहले आएगा वो किससे इनकाउंटर होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड से होगा. ऑक्सीजन रिच ब्लड से इनकाउंटर हो रहा है. जब पानी आ रहा है, दिस इज ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है. लेकिन ये पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, वाटर फ्लो ओवर द लैमेली शोइंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100% ज्यादा है. सपोज ये 100% है. ठीक है, ये फ्लो कर रहा है. दीज वर गिल लैमेली वर सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज इन द लैमेली शोइंग द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि सबसे पहले पानी कितना था? 100%. पानी में 100% ऑक्सीजन थी. आगे जाते जाते देखें ये कम होते होते 5% रह गई. क्योंकि 5% इसलिए रह गई क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन पानी से जब होते देखें यहाँ देखें 90% तक पानी आ गई. ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड था. ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड था. जैसे पानी इसके ऊपर जा रहा था, पानी से ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो अपनी ऑक्सीजन इसके अंदर लेता रहेगा हद तक कि ये यहाँ पर जब पहुंचेगा, ये पर देखें पानी कहाँ आ रहा है? 90%. ये देखें ब्लड इस ब्लड के अंदर, इस रेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर 90% ऑक्सीजन हो गया. 90% ब्लड फ्लोइंग थ्रू कैपिलरीज इन लैमेली शोइंग परसेंट. ये 90% तक पानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो जाएगी. 90% तक. सबसे पहले पानी के अंदर ज्यादा थी, फिर उसके बाद जब ये यहाँ पानी इसके ऊपर से गुजरा तो सारी ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती रही. Each gill is highly vascularized structure composed of 2 rows of hundreds of gill filaments arranged in V shape. In the capillaries of each lamellae, the blood flows in the direction opposite to the movement of water across the gills. ये opposite है, counter current flow की. Thus, the most highly oxygenated blood is brought close to the water that is just entering the gills and that has even higher oxygen concentration than the blood. ये जो बात अभी बताइए गिल फिलामेंट. काउंटर करंट फ्लो ऑफ द ब्लड and the water maintains a concentration gradient down which oxygen diffuses from water to the blood over entire length of capillary. This is the counter current flow की वजह से देखिए पूरे entire length of the gill lamellae जब ये कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं counter current flow of the blood and the water maintains the concentration gradient down which ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम वाटर टू द ब्लड ओवर द. ये मदद करता है पानी से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूज होने में. द इफेक्टिवनेस ऑफ द गैस एक्सचेंज इन सम ऑफ द गिल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ फिश. इट इंक्रीज बाय वेंटिलेशन एंड काउंटर करंट फ्लो ऑफ द ब्लड एंड द वाटर. जो किया था हमने काउंटर करंट फ्लो. Counter current oxygen exchange allows the blood to pick up 90% of the oxygen in the water. ये जिसकी वजह अभी पीछे आपने डायग्राम देखें 90% ऑफ द ऑक्सीजन जो पानी के अंदर की पानी की ऑक्सीजन जो है ना वो 90% उसकी पानी की ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है इस काउंटर करंट इफेक्ट की वजह से. काउंटर करंट इफेक्ट की वजह से 90% पानी की 90% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है. ये अहम है. This
impressive ability to acquire oxygen allows fish to thrive in water that has oxygen level only a tenth of those at the top of the Mount Everest, where most people cannot survive without supplementary oxygen. It just shows that fish are truly master at the breathing. Fish are truly master at the breathing. ये बात बताई जा रही है. Enhancing the efficiency of fish gills. Fish water flows over the gills in one direction. This is counter current flow, and blood in opposite direction. Water and blood in the gills flows in the opposite direction. ये बहुत है counter current flow. इसकी वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड के अंदर. Maintains a favorable concentration gradient for the diffusion of both gases. यहाँ देखिए पानी आ रहा है, water arrives oxygenated, rich in oxygen. पानी जो आ रहा है, it encounters with the blood which is more oxygenated. लेकिन जो ये आगे जाएगा पानी जो आगे जा रहा है, वाटर लीव्स लो इन ऑक्सीजन. जो आगे जाता जा रहा है, जो यहाँ की जो ब्लड है, ब्लड विच अराइव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, इसके अंदर ये यहाँ से ऑक्सीजन, पानी की ऑक्सीजन डिफ्यूज होती जाएगी. पानी की डायरेक्शन ये, ब्लड की डायरेक्शन ये, पानी की डायरेक्शन इस तरफ और ब्लड की डायरेक्शन ये है, अपोजिट. काउंटर करंट फ्लो. वाटर एंड ब्लड इन द गिल्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसकी वजह से यहाँ जो इसकी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ डिफ्यूज होती रहेगी, यहाँ डिफ्यूज होती रहेगी, यहाँ डिफ्यूज होती रहेगी, यहाँ डिफ्यूज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है. काउंटर करंट फ्लो की वजह से यहाँ डिफ्यूज होती रहेगी. ये उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको. काउंटर करंट फ्लो. ये structure of gill filament and gill lamellae. The effectiveness of gas exchange is some of the gas including those of fish increase by ventilation. ये बताया था मैंने आपका अपर कुलम, ये बताया गिल, वाटर फ्लो. ये एक पीछे भी डायग्राम आपने देखी, इसकी काउंटर करंट फ्लो की वजह से ये हो रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ गिल फिलामेंट एंड गिल लैमेllae. Counter current flow of blood and the water maintains a concentration gradient down which oxygen diffuses from water, पानी से, to the blood over entire length of gill lambda, over entire length of gill lambda. अभी पीछे डायग्राम में देखो, इसमें भी आपने देखा काउंटर करंट फ्लो की वजह से किस तरह पानी की ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनटू ब्लड. काउंटर करंट फ्लो की this, ये देखें, in the capillaries of each lamellae the blood flows in the direction opposite to the movement of water across the gills. ये देखिए वाटर फ्लो बिटवीन द लैमेली, ये जा रहा है वाटर फ्लो थ्रू द कैपिलरीज इन द लैमेली. ये गिल लैमेलीज. यहाँ देखें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर टू द ब्लड. ये देखें ये ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पानी लेकिन जो आ रहा है फर्स्ट इनकाउंटर विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन जो आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन जो पानी की ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती रहेगी. किसके अंदर डिफ्यूज होती जाएगी? किसके अंदर? ब्लड के अंदर होती जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन वो कम होगी. ब्लड के अंदर यहाँ के जो ब्लड आ रहा है इधर, ये कम होगी. ऑक्सीजन वाटर की मूवमेंट इस तरफ है. ब्लड फ्लो इन द सिंप्लीफाइड कैपिलरीज शोइंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. काउंटर करंट एक्सचेंज. ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज इन द लैमेली. इस तरह ये जा रहा है, ठीक है ना. और ब्लड की डायरेक्शन भी आपको बता दी यहाँ पर. काउंटर करंट फ्लो. Thus, the mostly highly oxygenated blood is brought close to the water that is just entering the gills and that has even higher oxygen concentration than the blood. ये सबसे पहले इनकाउंटर करेगा, लेकिन जो पानी आगे बढ़ रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आ रही है, ज्यादा है बनिस्बत ब्लड के. और इसकी वजह से यहाँ पर पानी की ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती चली जाएगी आगे की तरफ. पानी के आगे बढ़ता रहेगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज होती जाएगी. काउंटर करंट फ्लो. These are the few references which are used during this lecture. इन तमाम रेफरेंसेस का शुक्रिया. इन रेफरेंसेस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई है. इन तमाम रेफरेंस एक्नॉलेजमेंट के तौर पे रेफरेंसेस का देना बहुत ज़रूरी है. इन तमाम रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for watching this video. The students are always welcome to ask any question in the comment box. I will try to answer all
द क्वेश्चन। थैंक्स। आप तमाम लोगों को आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर से मुतालिक कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा तमाम सवालात के जवाब दूँ। आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।